The Raman spectroscopy was invented by Dr. C.V. Raman in the year 1928. And for this discovery, he got the Nobel Prize. In which subject? कौन सा subject में? Yes, very good. He got the Nobel Prize in physics. Am I clear? Yes. Now, first I will explain you about the principle of Raman spectroscopy. Very important. Principle of Raman spectroscopy. Raman spectroscopy is based on the principle of scattering of light. Scattering of light and the measurement of its frequency. जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करेंगे. नाउ जब लाइट इंसिडेंट होता है किसी क्रिस्टल पे, ठीक है, जब लाइट इंसिडेंट होता है किसी क्रिस्टल पे तो यहां पर तीन प्रोसेस होते हैं. ध्यान से देखिएगा, वो तीन प्रोसेस हैं. पहला, कुछ लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. ठीक है, तीन फिनोमेनन में एक्सप्लेन कर रहा हूं. पहला, जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. कुछ लाइट क्रिस्टल से एब्जॉर्ब होके ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर हो जाएगा. ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग, फैल जाए. इसी स्कैटरिंग को बोलते हैं डिफ्लेक्शन. इस स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन. मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला प्रोसेस है some amount of incident light will be reflected back, some amount of light will be transmitted, and the third quality or the phenomenon is the some quantity of light will be scattered or reflected. Raman spectroscopy में हम basically study करते हैं scattering or deflection of light. So what is the principle of Raman spectroscopy? We are going to study about the scattering of light. Raman spectroscopy we have to study about the scattering or reflection of light. Am I clear? So the principle is we are going to study about the scattered light, its frequency and its wavelength. Everyone knows the symbol for wavelength is lambda and that of frequency is mu. Am I clear? Up to here is it clear? Yes. It's good to inform that today is the birthday of Dr. C.V. Raman. Claps for him. So I am taking this topic. Okay. Now let us proceed with the Raman spectroscopy principle further. When a light is scattered, there are two types of phenomena. First is the scattering can be elastic or scattering can be inelastic. We have studied about the collision. Yes, collision of molecule. The collision can be of two types, elastic and inelastic. When two atoms or molecules collide and if their energy is maintained, then that type of collision is called the elastic collision. And in inelastic collision, there is either loss or gain of energy. Similar to that, scattering is also of two types. One is elastic scattering and the other one is inelastic scattering. Now what happens in elastic scattering? The frequency of incident radiation is equivalent to the frequency of the scattered radiation. Am I clear? और inelastic collision में क्या होगा? Inelastic scattering में क्या होगा? In frequency of incident radiation will not be equivalent to the frequency of scattered radiation. Am I clear? Now inelastic जो हमारा scattering है वो खुद दो तरीके का है. पहला है Stokes line and the second one is anti-Stokes line. Am I clear? Inelastic scattering is of two types. First is the Stokes line formation or Stokes scattering and the other one is anti-Stokes scattering. The name for elastic scattering is Rayleigh scattering. R-E-Y-L-E-I-G-H. Rayleigh scattering, name of the scientist. And the other name for inelastic scattering is the Raman effect or the Raman scattering. So we are going to study basically about the Raman effect or Raman spectroscopy that considers the inelastic scattering. Am I clear? The inelastic scattering is the one where the frequency of the incident radiation is not equivalent to the frequency of scattered radiation. Now I will explain you what is frequency of incident radiation, what is frequency of scattered radiation. Written up to here? Yes. Is this thing written? Okay. Next, I am going to explain you what is this elastic and inelastic scattering. Concentrate, this is very important. This is related to our photochemistry also. Please
Pay attention. This is going to be very important. This diagram you have to draw in your answer sheet also. I am taking 3 cases. Please concentrate. The first case is relay scattering. Am I clear? Yes. Concentrate on board. This is the ground state. This is the first excited state, and this is a virtual state. Let it be V. Similarly, this is the first ground state, first excited state, virtual state. Ground state, first excited state, virtual state. Am I clear? Now, there is transfer of energy from the incident radiation from ground level to that of the virtual state V. And this is the frequency of which light? Incident. From the crystal, if the light is deflected and the frequency of the scattered light is also same as that of incident light, then that type of case is called the relay scattering. Relay scattering में क्या होगा? Frequency of incident light for the transfer of electron from ground state to virtual state is given by mu I, and that of the light which is coming back from the excited virtual state to the ground state is given by mu S. Am I clear? Am I clear? So which type of scattering is this? Elastic. Am I clear? Yes. Now, what happens in inelastic scattering? In inelastic scattering, there are 2 cases. One is Stokes and the other one is anti-Stokes. What is happening in Stokes? Please concentrate. This is important. This is your E0, E1, and this is suppose V state. Am I clear? Now, here the light is transferred from the ground state to the virtual state by an incident radiation given by mu I, which is having a frequency of mu I. But जब वो scatter होता है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? mu S. You can say that mu I is greater than mu S. Am I clear? Am I clear? जो light incident हुआ था उसका frequency है mu I, और जो light रिफ्लेक्ट या स्कैटर डिफ्लेक्ट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है mu s. Am I clear? तो mu s is smaller than mu I. Am I clear? This type of effect is called the Stokes effect. What is this known as? Stokes effect. Am I clear? Now, the last case is once again E0, E1 and V state. This is bit different. Please concentrate. If the atom or the electron is already present in the first excited state, what is the name of this state? What is this? And what is V? Virtual state. If the electron is already present in the even state, that is the first excited state, and it is incident by a frequency mu I. Am I clear? But the light का जो scattering है उसकी frequency क्या है? mu S. और यहाँ पर just opposite हो गया Stokes से, तो मैं लिख सकता हूँ mu I is less than mu S. But इस केस को क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक्स. क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक्स. अब ध्यान दीजिएगा इन एंटी स्टोक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट. ऐसा हो सकता है क्या? बहुत कम चांस है. क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूम टेम्परेचर में किसी एटम या इलेक्ट्रॉन का E1 में प्रेजेंट होना, E1 का नाम क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल है. बात मानते हो? अगर कोई एलिमेंट या एटम या इलेक्ट्रॉन है तो वो किस स्टेट पे रहना चाहेगा? ग्राउंड स्टेट. रूम टेम्परेचर पे ही वो एक्साइटेड स्टेट पे रहे, इसका चांसेस बहुत कम है. इसीलिए एंटी स्टोक्स लाइंस के फॉर्मेशन का चांसेस सबसे कम है. Am I clear? सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म होगा? रिले लाइन. सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म होगा? रिले लाइन. उसके बाद कौन सा फॉर्म होगा? स्टोक्स. और सबसे कम एंटी स्टोक्स. Am I clear? Yes. Is it clear to you? Yes. Now, how to draw the curve for the scene? How to draw the Raman spectra for it? Concentrate. How is the Raman spectra obtained for a molecule? It is obtained like this. You will identify which is relay, which is Stokes, which is anti-Stokes. Concentrate.
This peak is called the intensity. What is this? Intensity. Where the intensity will be maximum? This is case A, this is case B, this is case C. So out of relay, listen to my question, out of relay, Stokes line and anti-Stokes line, where is the intensity maximum? Relay. So A represents which line? Relay line. Am I clear? Now next intensity will be of B, and B will be Stokes or anti-Stokes? Stokes line, and C will be anti-Stokes. Am I clear? You can see that the intensity is maximum in case of relay, then second number it is maximum in case of your elastic, inelastic type of Stokes, and minimum it is in inelastic types of anti-Stokes. Am I clear? Is it clear to everyone? Yes. Now, how is the energy of these radiations given by? The energy of these radiations is given by the equation E is equal to h mu. E is equal to h mu. What is E? Energy. H is equal to Planck's constant, 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and mu is the frequency. So I can say that change in energy will be given by h mu minus h mu naught. Am I clear? Change in energy will be given by h mu minus h mu naught. So I can write h common mu minus mu naught. Am I clear? Yes. Can I write like this? Now this mu minus mu naught is called the Raman shift. What is the name for mu minus mu naught? It is called the Raman shift. And the range of Raman shift is from 100 to 4000 per centimeter. 100 to 4000 per centimeter. Why is the unit per centimeter introduced here? Because wavelength is given by length. What is the unit of wavelength? Something in length, meter, centimeter, or something like that. But frequency is a reciprocal of wavelength, so its unit will be inverse of length. Yes. Am I clear? Yes. Am I clear? That is why I have written per centimeter. It can be per meter or per nanometer, whatever. Am I clear? Yes, Is it sir. clear to everyone? What is the range of Raman shift? 100 to 4000 per centimeter. Am I clear? Now, the next is the Gauss selection rule for Raman spectroscopy. Next is the Gauss selection rule for Raman spectroscopy. What do you mean by Gauss selection rule? Which type of molecule will be active towards Raman spectroscopy and which type of molecule will be inactive towards Raman spectroscopy? For this, we have to study something about the polarizability. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है polarizability of molecule. What do you mean by polarizability of molecule? Please concentrate. I am taking a homonuclear diatomic molecule. For example, it is H2. In case of H2, the structure will be something like this. Yeah. Am I clear? Yes. This is homonuclear diatomic molecule. अब polarizability क्या है? Polarizability है capacity to form the poles. Poles means there will be one positive pole and there will be one negative pole. जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? Something like this. This will be positive and this will be negative. That is because of more density of electron. Am I clear? अब इस टाइप की मॉलिक्यूल में अगर मैं एक एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा हूं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड. इंपॉर्टेंट है. ये एक मॉलिक्यूल था जो नॉन पोलर था. नॉन पोलर बिकॉज इट इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल H2. अगर मैं इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मैं इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा हूं तो ये एक हाइड्रोजन था, ये एक हाइड्रोजन था. ये दो हाइड्रोजन को जोड़ने वाला लाइन को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. करेक्ट. इट इज बॉन्ड लेंथ. इट इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ. बट एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सेंटर को दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सेंटर को जोड़ने वाला लाइन क्या कहलाता है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या फिर उसका बॉन्ड लेंथ. अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा? There will be some charge separation. Am I clear? There will be more electron density on my right hand side and less electron density on my left hand side. Am I clear? So the molecule will convert from non-polar molecule to polar. Molecule will convert from non-polar molecule to polar molecule. Why?
बिकॉज ऑफ इट्स पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी कब होता है? जब हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? एक्सटर्नल। एम आई क्लियर? तो किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर होना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? अगर किसी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होना है तो उसको क्या होना चाहिए? पोलर। एम आई क्लियर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फायदेमंद नहीं है। इज इट क्लियर? पोलराइजेबिलिटी एंड ग्रॉस सिलेक्शन रूल इज क्लियर टू यू? नाउ क्या होगा अगर चार्ज सेपरेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा? ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, और अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, एम आई क्लियर? तो भी चार्ज सेपरेशन होगा, लेकिन चार्ज सेपरेशन ज्यादा नहीं होगा। तो भी चार्ज सेपरेशन होगा, बट चार्ज सेपरेशन ज्यादा नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं द चार्ज सेपरेशन alpha will be more when the external field is parallel to that of the charge separation when the external field is perpendicular. Parallel को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं parallel lines को, और perpendicular को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो what is alpha? Alpha is the polarizability. Polarizability parallel के केस में ज्यादा होगा as compared to polarizability perpendicular. पोलराइजेबिलिटी क्या है? जब एक्सटर्नल फील्ड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मॉलिक्यूल नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होता है या चार्ज सेपरेशन आने लगता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सो पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा? रमन एक्टिव हो जाएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सो अल्फा ऑफ पैरेलल इज ग्रेटर देन द अल्फा ऑफ परपेंडिकुलर। This line is also clear to you? Is it clear? Now, last topic is the application of Raman spectroscopy. Where is the Raman spectroscopy used? Raman spectroscopy is generally used in cases where the molecule is IR inactive. ध्यान दीजिएगा, हमको पढ़ना है UV visible, हमको पढ़ना है IR, हमको पढ़ना है Raman spectroscopy. Am I clear? ये पॉइंट है कि अगर कोई मॉलिक्यूल IR में इनएक्टिव है तो वो रमन में क्या हो जाता है? यूजुअली वो रमन में क्या हो जाता है? एक्टिव। रमन में वो हो जाता है। अब मैंने क्या बोला है? रमन के लिए एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल का क्या होना जरूरी है? एम आई क्लियर? इज इट क्लियर? और किसी मॉलिक्यूल का IR में एक्टिव होने के लिए, for IR to be active in a molecule, the molecule should have some change in dipole moment. There should be some change in dipole. Am I clear? अब देखो change in dipole moment कब होगा? ये important है। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं N2. N2 का स्ट्रक्चर will be something like this. Am I clear? Now इसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की। अगर N2 की बात करें तो N1 जो है वो लेफ्ट हैंड में जा रहा है, N2 जो है वो राइट हैंड में जा रहा है। एम आई क्लियर? तो इस टाइप का स्ट्रेचिंग होगा, दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? दोनों का बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये सिमेट्रिक हुआ कि एसिमेट्रिक हुआ? इस टाइप का वाइब्रेशन या स्ट्रेचिंग क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ कि एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। ये किस टाइप का स्ट्रेचिंग है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट ध्यान देंगे, एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं N2 का स्ट्रक्चर है NO। एम आई क्लियर? यहां पर जो N1 है वो N2 की ओर जा रहा है, तो N1 और N2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। एनी डाउट? और जो O है वो N2 से दूर जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो O है वो N2 से दूर जा रहा है, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। एम आई क्लियर? यहां पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है और यहां पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक रहा कि एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक। इस टाइप का मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। क्या शो करेगा? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एम आई क्लियर? तो हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के तौर पर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है। अगर हमको पता करना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, मतलब हम बेसिकली मॉलिक्यूल का क्या पता कर रहे हैं? और अगर हमको पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर में किसी मॉलिक्यूल का आइसोमेरिज्म पता करना है तो भी हम उसको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप?
ज्योमेट्रिकल। आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? दो टाइप्स कौन कौन से हैं आपको पता है? सिस एंड ट्रांस। Am I clear? अब मैं बना रहा हूं एक सिस मॉलिक्यूल, एक ट्रांस मॉलिक्यूल। आप लोग मुझे बताएंगे किसमें सिमेट्री है, किसमें सिमेट्री नहीं है। ए बी बी, ए बी बी, बताइए। पी एंड क्यू दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दो आइसोमर है किसी एक ही मॉलिक्यूल के। तो पी सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस। पी क्या है? ट्रांस। और क्यू क्या है? सिस। अब मुझे बताइए कौन से पी में कि क्यू में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस में प्रेजेंट है कि सिस में प्रेजेंट है? ट्रांस में प्रेजेंट है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री में ये ले रहा हूं, ठीक है, तो इसकी डायगोनल राइट में प्रेजेंट है ए, इसकी डायगोनल लेफ्ट में कौन प्रेजेंट है? ए सॉरी। अगर इसकी डायगोनल राइट की बात करूं अपवर्ड्स तो बी, डायगोनल लेफ्ट की बात करूं डाउनवर्ड्स तो कौन प्रेजेंट है? बी। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट अगर मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री सिस की, तो इसके अपोजिट साइड्स में अपोजिट ग्रुप्स। एम आई क्लियर? तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। तो हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक वाइब्रेशन देगा कि एसिमेट्रिक वाइब्रेशन देगा, और मॉलिक्यूल में कौन सा पर्टिकुलर आइसोमर ट्रांस है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशंस लिख रहा हूं। वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, वी कैन डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, and also we can determine the center of symmetry is present or not. और center of symmetry से हमको क्या पता चल जाएगा? Basically isomers, whether the molecule is cis or whether the molecule is trans. तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। आज हमने पढ़ा बेसिकली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इससे पहले पढ़ा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर लाइट के एब्जॉर्प्शन की बात की जाती है। जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड स्टेट में। बट अगर बात करें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टाइप ऑफ स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हम स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिटरमाइन करते हैं। इसका डिस्कवरी डॉक्टर सीवी रमन ने 1928 में किया था, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ठीक है, हम यहां पर बेसिकली पढ़े हैं स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के स्टडी के बारे में। अगर हम बात करें इनके स्कैटरिंग के बारे में, तो ये स्कैटर्ड लाइंस जो हैं वो बेसिकली दो तरह के फेनोमेनन देते हैं। पहला होता है रिले इफेक्ट और दूसरा होता है रमन इफेक्ट। रिले इफेक्ट में जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन की इक्विवेलेंट होती है, दैट इज म्यू आई इज इक्वल टू म्यू एक्स। बट रमन इफेक्ट की बात करें तो रमन इफेक्ट दो तरीके का होता है। पहला स्टोक्स लाइन फॉर्मेशन और स्टोक्स स्कैटरिंग, और दूसरा एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। स्टोक्स स्कैटरिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, और एंटी स्टोक्स लाइन में फ्रीक्वेंसी और द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेसर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। अब बात करते हैं एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी के बारे में। एंटी स्टोक्स लाइन में बेसिकली मैंने बताया कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वर्चुअल स्टेट। मैं रिवाइज करा रहा हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लाइट का वर्चुअल स्टेट में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी एटम या इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कौन से टेंपरेचर पे, रूम टेंपरेचर पे होने के चांसेस बहुत कम है। एम आई क्लियर? और वापसी में वो जो स्कैटर्ड लाइट देता है वो वापस कहां आता है? ग्राउंड से। तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन है वो ज्यादा हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। और अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन रूल के लिए। तो रमन इफेक्ट वही मॉलिक्यूल देंगे जो कि पोलर है। हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड को उस होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल से पास कराएंगे, और हम देखेंगे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में पास होने के बाद क्या वो पोलराइजेबिलिटी पैदा कर पाता है। अगर वो पोलराइजेबिलिटी ला पाता है तो इससे हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है या नहीं। इससे हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं, वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक और नॉट। इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म, वेदर द मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म और वेदर द मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन
ट्रांसफॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सेल। एम आई क्लियर?